टीवी पर कई आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जो बहुत ही नेशनलिज्म और आर्मी को मिक्स करके, जो जिसको मैं इंटरनेट नेशनलिज्म कहता हूँ, नेशनलिस्ट तो हम सब हैं, होना भी चाहिए मेरी समझ में, और उसको मिक्स करके एक बड़ा ही स्पिरिटेड सा लेकिन डिस्टॉर्टेड सा वर्जन पेश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर एक विचारधारा के आई मीन दे अब्यूज ऑन स्क्रीन एज वेल, वेल दे शो हर एक एंगर एंड ऐसा लगता है कि जो उनसे एग्री नहीं करेगा वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहूंगा कि ये हर एक अलग विचारधारा के लोग होते हैं, और कुछ हद तक जो हमारा एक सिस्टम बन गया है अभी, जो मॉडर्न जो टेलीविजन है, इनफैक्ट यू हार्डली सी एनी न्यूज, इनफैक्ट दे आर ऑल लुकिंग एट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ सेंसेशन, हु कैन क्रिएट अ सेंसेशन, देयर इज लैक ऑफ बैलेंस। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे चैनल बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक मेरे एक स्पेक्टिकल बने हुए हैं, जो जो आने वाले समय में जब मीडिया, नए मीडिया के जो स्टूडेंट्स होंगे, वो इस बातों को होंगे, द कॉमिकल फेज ऑफ मीडिया इन इंडिया. यस, When the media starts adhering to the government, it becomes its mouthpiece. It disregards media norms and decorums and everything. So then it happens because media is also owned by the thing. We have earlier seen in emergency where it was done by force, whereas presently it seems to be part political coercion, which is omnipresent in any society. I'm not talking of this government or that government. Previous governments also did the same thing. And also, this extreme nationalism and the media, etc., everybody has identified itself with the same thing. So consequently, there is a queering of the fish, and what is the ideal role of the media, in my view, has been jeopardized for the moment. There are of course traditional journalists and traditional media houses also, I suppose. But same way, the army officers who have after retirement, they have become part of this sort of prevailing mood of nationalism that is there. Nothing wrong with nationalism, but to identify an armed forces with the ideology of a particular party is actually is the true politicization. When you identify the armed forces ideology, that is not so with our army. Our army doesn't identify with the ideology of any political party. We are supposed to function as per the Constitution. We take our oath on the flag and the Constitution, not on the government of the day, and which may be this party or that party. So that when people say army is getting criticized and the veterans are criticized, I think it is, well, veterans in any case are citizens, so they can join politics. In the United States, they are part and parcel of the political culture. We have many presidents, not one. I think a good score of presidents have been of ex-military men. The last one being Eisenhower, and Kennedy himself had served in the Second World War. So many of them have been veterans. But coming back to this issue, but what happens is that when you identify the armed forces with every facet of national life, हर पहलू में आपने सेना को लाके खड़ा कर दिया, चाहे कि सेना ये कर रही है, सेना का एक जवान मर गया है तो उसको शहीद मतलब किल्ड इन एक्शन हो गया है, उसकी बात को हम लेकर बहुत जुलूस निकालने चाहिए, लेकिन उसको श्रद्धा के लिए, उसको एक ऑनर देने के लिए। लेकिन उस बात को आइडेंटिफाई करना पूरे इलेक्शन कैंपेन्स में और हर एक एक्टिविटी में सेना को इन्वॉल्व करना, जैसे कोई बड़ी बात हो रही है, कोई योगा डेज हो रहे हैं या कोई पुल बनाना है, सेना को इन्वॉल्व कर लिया। तो सेना एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। हमने सेना और गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिवाइडिंग लाइन है, उसको ब्लर कर दिया। तो आप गवर्नमेंट को मतलब अगर अब गवर्नमेंट सेना को आदेश देती है, अगर कोई गलत बात हो गई तो हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, वो कहते हैं आप सेना को डाउट कर रहे हैं, तो ये ब्लर हो गई है।
तो ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है, ना कि पॉलिटिसाइजेशन है। एक्सप्लॉयटेशन है मतलब कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पार्टियां जो हैं, ये हर जगह करती हैं, सभी पार्टियां करती हैं, एक पार्टी नहीं सभी पार्टियां करती हैं, तो वो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो हिंदुस्तान हमारे अंदर जो है अभी इस वक्त पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर ज्यादा जोर है, ना कि पॉलिटिसाइजेशन हुई है सेना की। लेकिन इसका खतरा है, जब आप उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, जब वो देखते हैं कि हम हर जगह हैं, तो फिर सेना वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, और कुछ तो लोग बात सुनकर भावुक हो जाते हैं, और कुछ हियरार्की जो होती है वो उनकी सोच विचार अलग सी हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि सेना के जो ऊपर वाले अपॉइंटमेंट्स हैं, वो उसका फैसला सरकार के हाथ में होता है, और तो कुछ हद तक मैं कहूंगा कि ये बात दिखाई दे रही है इस वक्त कि जो हियरार्की है वो उनका झुकाव थोड़ा, दे आर बेंडिंग विद द विंड, एंड व्हेन यू बेंड विद द विंड तो थोड़े, तो उनकी जो एडवाइस भी होती है, एडवाइस ऑफ मिलिट्री हियरार्की टू द गवर्नमेंट हैज टू बी इम्पार्शियल, इट हैज टू बी प्रोफेशनल, सही बताना चाहिए कि ये बात है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप इसका उदाहरण लीजिए जो आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है कि पिछले 6 साल से ये बात आगे है, और जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, पहले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो अक्सर ये कहते रहे हैं कि हम 2.5 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मतलब 2, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे, और साथ में आधा इंसर्जेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, 2.5 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सक्षम हैं, हमें आदेश मिलने चाहिए, हम अक्सर चीन पहुंच जाएंगे, हम पीओके पहुंच जाएंगे, गिलगित बाल्टिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन जो एथिकल असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटीज की असलियत है, उसके साथ उन्होंने सरकार को वाकिफियत नहीं कराया। अभी आप देखिए कि अभी तो पहला शॉट फायर नहीं हुआ है एलओसी के ऊपर, क्योंकि जो पहले हुई है वो डंडों और हाथापाई की लड़ाई थी हुई है, जो इसको बहुत ही भयानक किस्म की लड़ाई थी 15 जून की। लेकिन वो मतलब प्रिमिटिव हथियारों के साथ हुई है। एक पहला शॉट फायर नहीं हुआ है अभी तक, और हम भाग रहे हैं दुनिया में सामान खरीदने के लिए। तो क्या दर्शाता है? तो इसका मतलब है कि ये बात सरकार को पता नहीं थी, या सेना ने ये बात सरकार को बताई नहीं थी। तो किसने ये प्रॉब्लम की है? तो अगर कोई अभी कहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहता ये तो एंटी नेशनल है, ये ऐसा है। मतलब आपने इस बात को जो है, गवर्नमेंट ने बजट देना है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सेना ने एडवाइस देनी थी, अगर एडवाइस दी कि नहीं दी। अगर आप एलएसी पर सरप्राइज हो गए हैं आज, क्यों सरप्राइज हुए आप? चलो मैं मानता हूं कि दूर से तो चाइनीज आ रहे थे, जब आपको दिखाई दे रहा है जमीन के ऊपर कि अब चाइनीज पहुंच रहे हैं, हमारे भी यूएवी घूम रहे हैं, क्यों नहीं हमने पहल की? क्यों नहीं हम फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपने ट्रुप्स को भेजा? तो अगर क्या ये सवाल ना पूछे जाएं? तो बात कहीं से शुरू हुई थी और हम पहुंच कहां गए हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का यही है कि जब आप सेनाओं को या किसको किसी एक कोशिश करते हैं कि वो एक आइडियोलॉजी का हिस्सा बन जाए, एक तो उसके बहुत नुकसान हैं। और एंड व्हेन वी से कि क्रिटिसाइज द आर्मी एट योर ओन पेरिल, लेकिन हमारी सेना क्रिटिसाइज नहीं है। हियरार्की थोड़ा सा कमजोर पड़ी है इस मामले में कि वो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, नॉट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा वो बेंड कर रहे हैं। और ये आज ही नहीं हुआ, ये आज ही नहीं। ये बात आप देखिए, मैंने उसका एक लेख भी लिखा है इसके अंदर कि बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी, आई थिंक एक लेख है जिसमें मैंने जनरल कॉल का जिक्र। जी, तो जी। 1957 से लेकर उसका 62 तक का जिक्र है उस पूरे केस में। तो आप देखिए उस टाइम पे ये क्या हो रहा था, एक थोड़ा सा जो लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड थे
वो सेना के अंदर हावी हो गए, उनको आगे बढ़ाया गया, और फिर आपने रिजल्ट देखा क्या हुआ। तो ये तो मैं तो यही कहूंगा कि सेना को थोड़ा अलग रखा जाए।